تمام قصه های خوب برای گفتن خوب ہے. میرے استاد محترم ڈاکٹر قاسم فلوقی صاحب نے اچھے بچوں کے لیے اچھی کہانیوں کے نام سے اردو میں ان کا ترجمہ کیا ہے. میں مزید بات نہیں کروں گا. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر علی بیات فرام ایران. اور بڑی خوبصورت اردو میں انہوں نے اپنا بڑا ایک زبردست قسم کا مقالہ جس میں کون سی آگاہی ہوئی بچوں کے ادب کے حوالے سے ایران میں کیا ہو رہا ہے, کیسے کام ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر علی بیات. اب میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر پروفیسر خلیل توکار کو. ٹرکی سے ہیں, انہیں کون نہیں جانتا. پاکستان کی اکثر وزٹس رہتی ہیں. پاکستان کی طرف سے ان کو ستارہ امتیاز بھی ملا ان کام کی بدولت, اور استنبول یونیورسٹی کی شعبہ اردو کے سربراہ بھی ہیں, اور شرکیات ریسرچ سینٹر کی بھی سربراہ ہیں, اور 32 سال سے یہ درس و تدریس سے منسلک ہے. استنبول یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرز بھی دیتی ہیں, اور 50 سے زائد کتابیں ہیں ان کی لکھی ہوئی, اور بہت سارے ریسرچ پیپرز ہیں لٹریچر کے حوالے سے. تو میں ان کے بارے میں ایک اور بات کہا کرتی ہوں کہ یہ پاکستان کے داماد بھی ہیں. تو خلیل توکار ہمارے مہمانوں, یہ موسٹ ویلکم ٹو دس کانفرنس ایز یوزول. آئیے اپنا خوبصورت سا مقالہ پیش کیجیے. السلام علیکم. اب سب سے پہلے میں اس خوبصورت اور کامیاب کانفرنس کے لیے کامیاب کانفرنس کے انعقاد کے لیے ادب ادبیات پاکستان کے چیئرمین یوسف خوشک بھائی کو اور ان کی ٹیم کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ کافی عرصے میں علیم اور علالت کی وجہ سے تو آج بھی آپ وہ سن رہے ہیں میرے آواز مقابلہ بیٹھ گیا اور مجھ سے کچھ چیز سے بات ہو رہی ہے. لہٰذا معذرت کے ساتھ میں آپ گزارش کروں گا یوسف خوشک صاحب سے کہ وہ میرے تقریر کو میری جگہ وہ پڑھیں. جیسے یہ بھائی ہیں اور میری جگہ میرے خالی مقام بھی ہے, اور میں گزارش کروں گا لیکن مجھ سے زیادہ بات نہیں ہو پا رہی ہے, اس لیے بہت معذرت. بہت شکریہ بھائی. آپ میں ڈاکٹر صاحب کے مقالے کا عنوان ہے ترکی زبان میں بچوں کا ادب. میں مقالہ پیش کرتا ہوں. عصر حاضر کی تگ و دو میں پھنسا ہوا انسان بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داری سے اکمل طریقے سے عہدہ برا نہیں ہو پاتا. یہ بھی ازہر منشم ثمر ہے کہ بچوں کی پرورش میں اسکول کے جدید سائنسی موضوعات اور دینی علوم کی تعلیم و تدریس بے شک اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہے, اور ان کی اہمیت سے انکار ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ان کے ساتھ ساتھ بچوں کے کردار کی تعمیر میں ایک اور مددگار طاقت جو ہمارے پاس ہے وہ ادب ہے. آپ اسے ادب, ادبیات یا لٹریچر جس نام سے بھی دل چاہے پکاریں. یہ ایک ایسی بڑی طاقت ہے کہ دماغ کو زور دیے بغیر, جد و جہد کیے بغیر اور گھنٹوں رٹے لگائے بغیر بچوں کے تحت الشعور میں نفوذ کرتی ہے اور اس کی شخصیت کی گہرائیوں تک اثر کرتی ہے. ادب کا یہ اہم کردار سب کے لیے مساوی کام کرتا ہے, لیکن چونکہ یہاں ہمارا موضوع بچوں کا ادب ہے لہٰذا ہم اپنی توجہ بچوں کے ادب اور بالخصوص ترکی زبان میں بچوں کے ادب پر مرکوز رکھیں گے. عام طور پر ادب اطفال سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بچوں کو اپنی زندگی کے پہلے مرحلوں سے لے کر ایام نوجوانی تک ایسی تہذیبی اور ثقافتی تعلیم فراہم کرے جس کے ذریعے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ دوسرے انسانوں سے, جانوروں سے اور ماحول زیست سے محبت اور ان کا احترام سیکھیں. وہ سماج کے اندر کس طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں, اس سماج میں ان کا کیا مقام ہے اور کیا کردار ہونا چاہیے, یہ سب بچوں کے مثبت ادب کی لازمی خصوصیات ہیں. مزید برآں مثبت ادب اطفال کا یہ بھی درجہ امتیاز ہے وہ بچوں کو اپنے مذہب کے قریب لائے اور اپنی قوم اور وطن سے پیار کا سبق دے اور انہیں اچھا اور برا, غلط اور درست, حق اور باطل کی تفریق کرنے کا طریقہ سکھائے اور قدم بہ قدم بچوں کی ذہانت اور صلاحیت کو تقویت اور وسعت دے. البتہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کی شخصیت کی تعمیر میں جو ادب مثبت کردار ادا کرتا ہے وہ بچوں کی ذہنی سطح اور وسعتوں, ان کی عمر اور ان کی دلچسپیوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر تخلیق کیا ہوا ہوتا ہے. جب سے اس پورے زمین پر بنی ہوئے آدم موجود ہے تب سے ادب کے نمونے کسی نہ کسی شکل میں ظہور پذیر ہوتے آ رہے ہیں.
कबायली ज़िंदगी में वक्त गुजारने के लिए सुनाई गई शिकार या लड़ाई की कहानियाँ या खुशी के मौक़ों पर गाए जाने वाले गीतों के बोल और माबूदों के सामने पुजारियों की मुतरन्निम दुआएं, ये सब अदब की इब्तदाई शक्लें थी जो आगे चलकर तहजीब और सकाफ़त की तरक्की के साथ साथ अदब की मुख्तलिफ असनाफ की बुनियाद बन गई। और फिर जो अदब तश्कील पजीर हुआ वो खुद ही तहजीब और सकाफ़त की तरक्की, इस्तेहकाम और नस्ल दर नस्ल इंतकाल का ज़ामिन बन गया। लेकिन 18वीं सदी ईस्वी तक बाकायदा अद्वियात इक़बाल की तलाश बहाल है। इसमें कोई शक नहीं कि पहेलियों, हिकायात, कसाइस, दास्तानों और नज़मों में कुछ ऐसी खुसूसियात थी जो बच्चों के लिए दिलचस्पी का बायस हों और बच्चे उनको शौक़ से सुने और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कारी की हैसियत से बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए लिखी गई। दुनिया की दूसरी ज़ुबानों की तरह तुर्की ज़ुबान में भी सूरत हाल यही थी और खाना बदोश तुर्क कबाइल में कौमी रज़्म या दास्तानें जिनमें तुर्कों की तारीखें, जंगें, जीत और हार, नीस्त व नाबूद होने से बाल बाल बचकर फिर से कौम की निशात सानिया की कहानियाँ बयान की जाती थी। दास्तान गों की ज़ुबान साज के साथ सुनाई जाती थी और बच्चे भी बड़ों के हमराह उनको सुन सुनकर बड़े होते। यही बहादुरी, जुर्रत व हिम्मत और ताकतवर से ताकतवर दुश्मन के सामने हार न मानने, उसका मुकाबला करने और अपनी कौम के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का दर्स देकर तुर्क बच्चों को एक जंगजू कौम का फर्द होने का शौक़ दिया जाता था। इसलिए तुर्कों के कबूल इस्लाम से पहले भी बाद में भी मुख्तलिफ तुर्क कबाइल में कई रज़्मिया दास्तानें मौजूद थी, जिनमें दास्तान एले खान, दास्तान पैदाइश, दास्तान अलपेर तोंगा, दास्तान शू, दास्तान ओगोस का खान, दास्तान अतीला, दास्तान सुरमई भेड़िया, दास्तान एर्गेनेकोन, दास्तान तख्लीक तुर्क कौम और दास्तान हिजरत सर फहरिस्त हैं। इन दास्तानों के अलावा बिलखुसूस तुर्की, आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान के तुर्क ओगोस काकान की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सब ओगोस कबाइल का मुश्तरका नस्ली दास्तान दादा कोरकुट की किताब है, जिसमें दादा कोरकुट नामी एक शख्स की ज़ुबानी ओगोस कौम की बहादुरी और जुर्रत के साथ साथ उनको गलतियों से दूर रहने और इंसानी ताल्लुकात की नोयत, ओगोस कौम के रहन सहन का तौर तरीका सिखाने वाली मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाई जाती हैं और हर कहानी के अपने अपने किरदार हैं। सदियों से ओगोस कबाइल में ज़बानी नकल होने वाली कहानियों की 14वीं और 15वीं सदी में मुख्तलिफ गुमनाम अफराद की जानिब से कलमबंद किया और हर चंद दादा कोरकुट की किताब बच्चों के लिए नहीं लिखी गई थी। उसके बावजूद बच्चे उसमें मौजूद कहानियों को शौक़ से पढ़ते हैं और अपने बुजुर्गों से सुनते थे। इसी तरह तुर्की के मारूफ मज़ाहिया किरदार नसीरुद्दीन खोजा यानी मुल्ला नसीरुद्दीन है। हरचंद मुल्ला नसीरुद्दीन के पुरलुत्फ़ और हंसी मजाक के लतीफ़ों के असल मुखातिब बच्चे नहीं, लेकिन उन लतीफ़ों का पुरकशिश अंदाज बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी नफ्सियात के ऐन मुताबिक है। मिसाल के तौर पर उनका ये लतीफ़ा सुन लीजिए। किसी आदमी का इंतकाल हुआ और उसका बेटा मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जाकर कहने लगा, मेरे वालिद साहब जुम्मे के दिन वफात पा गए, उस जहां में उनका इस्तकबाल किस तरह होगा? मुल्ला ने पूछा, क्या वो नमाज पढ़ते थे? मैयत के बेटे ने जवाब दिया, जी नहीं, मगर मेरे वालिद तो जुम्मे को इंतकाल कर गए। मुल्ला ने पूछा, क्या वो अयाशी करते थे? मैयत के बेटे ने जवाब दिया, जी हुजूर, अयाशी भी करते थे, मगर वो तो जुम्मे के दिन वफात पा गए। मुल्ला ने पूछा, आया वो चोरी चकारी भी करते थे? मैयत के बेटे ने कहा, जी जनाब, मगर वो तो जुम्मे के दिन इंतकाल कर गए। उस पर मुल्ला नसीरुद्दीन को सख्त गुस्सा आया और कहने लगे, ठीक है बेटे, ठीक है, जुम्मे को तो उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, मगर जब हफ्ते का दिन आएगा उस दिन उनका तमाम हिसाब किताब बखूबी नहीं। हंसी मजाक में अखलाकियात का सबक देने वाले इन लतीफ़ों के मुखातिब बच्चे लोग न होने के बावजूद तुर्की ज़ुबान में बच्चों के अदब का एक हिस्सा बन गए। वो आमतौर पर यह समझा जाता है कि जदीद हद तक बच्चों को मलूज़ ख्याल रखने वाली या उनसे मुखातिब होने वाली कोई अदबी सिन्फ नहीं, मगर मेरे ख्याल में एक ऐसी अदबी सिन्फ इंसानियत के अवलीन दिनों से लेकर आज तक मौजूद है। वो सिन्फ है लोरियाँ, जिनके मुखातिब बराह रास्त बच्चे हैं। वहाँ बच्चों को सुनाने के लिए हों, वहाँ बच्चों को दिलासा देने के लिए हों,
हमारी माओ की गुनगुनाई हुई मंजूम लोरियाँ जदीद अहद से कबल अदबियात इत्फाल का वाहिद बामकसद नमूना है। दूसरी ज़ुबानों की तरह तुर्की ज़ुबान में भी कबल इस्लाम से लेकर आज तक बेशुमार लोरियाँ गुनगुनाई गई हैं और बाद में लोरियों से मुतालिक किताबें तैयार की गई। ये लोरियाँ बसा औक़ात बच्चों को सुलाने के लिए उनकी माओ की ज़ुबानी मुतरन्निम आवाज़ों में गुनगुनाई जाती थी। उनको बेमाना और अल्फाज के साथ खेल की सूरत में नहीं लेना चाहिए। बच्चों को दिली सुकून देकर सुलाने के अलावा अक्सर व बेशतर लोरियों का एक तालीमी मकसद भी मौजूद होता है जिसके तहत उनकी सफ़बती की जा सकती है। अगर मैं तुर्की ज़ुबान को मद्देनज़र रखूँ तो तुर्की ज़ुबान की लोरियों में मजहबी और अखलाकी मौज़ूआत, बच्चों की सेहत और सलामती और उनके रोशन मुस्तक़बिल की दुआएँ और नेक तमन्नाएँ, उनसे वालदा का प्यार, कभी कभार बच्चों को सुलाने के लिए प्यार से धमकी वाली बातें, ज़िंदगी की मुश्किलात से शिकायतें और बच्चों को उन मुश्किलों से महफूज रखने के लिए अल्लाह मियाँ से इल्तिजाएं, वालिद की जुदाई या गरीबुल वतनी से शिकायत, ये सब ऐसे मौज़ूआत हैं जिनका जिक्र तुर्की ज़ुबान की लोरियों में मौजूद है। मिसाल के तौर पर दो लोरियों को ले लीजिए। लोरी सुनाकर सुलाती हूँ, तौहीद से चलना सिखाती हूँ, सीख ले नन्हे कदमों से चलना, अल्लाह कहकर तुझे पालती हूँ, सो जा मेरे बच्चे सो जा, हू 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 अल्लाह। जदीद तुर्की अदब तक पहुँचते पहुँचते लोरियों के अलावा पहेलियाँ, कहानियाँ, अफसाने, किस्से, कसाइस, मुख्तलिफ मंजूमात और दास्तानें, यानी अदब के मुख्तलिफ असनाफ में बच्चों को मलूल खातिर ना रखते हुए भी लाशऊरी तौर पर बच्चों के लिए अदब की बुनियादी तशकील दी गई थी। अब जब हम तुर्की अदब में सही मानों में अदबियात इत्फाल की बात करेंगे तो हम